لاک ڈاؤن میں نرمی کا اثر، کورونا بے قابو، ایک ہی دن میں ریکارڈ 88 افراد جاں بحق، اب تک 1483 اموات، 69,496 شہری متاثر، سندھ 27,360، پنجاب 25,056، خیبر پختونخوا 9,540، بلوچستان میں 4,193 کیسز، 25,271 مریض صحت یاب۔ کورونا کیسز اور اموات میں مزید اضافے کا خدشہ، شہریوں کے لیے رش والے مقامات پر ماسک کا استعمال لازم ہوگا، ڈاکٹر ظفر مرزا کی پریس کانفرنس۔ معید یوسف کا سمندر پار پاکستانیوں کے لیے جلد نئی پالیسی لانے کا اعلان۔ ملتان سے ایم این اے عامر ڈوگر کا بھی کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آ گیا، قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے چیف وپ نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کا کل سے گاڑیاں چلانے کا اعلان، حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف پیکج نہیں ملا، فاقوں پر مجبور ہو گئے، 1 جون سے سیٹ بائی سیٹ گاڑیاں چلائیں گے ٹرانسپورٹرز۔ عمران خان، حفیظ شیخ، اسد عمر اور عثمان بزدار چینی بحران کے ذمہ دار، شوگر مافیا کابینہ اور پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے، شوگر کمیشن رپورٹ میں ذمہ داروں کا تعین نہیں کیا گیا، شاہد خاقان عباسی۔ شاہد خاقان عباسی مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، رپورٹ خود انہی کے خلاف چارج شیٹ ہے، عمران خان نے سبسڈی کی نہیں ایکسپورٹ کی اجازت دی، وعدے کے مطابق رپورٹ بھی پبلک کر دی، شہزاد اکبر۔ چاروں صوبوں میں ٹڈی دل نے تباہی مچا دی، درجنوں اضلاع بری طرح متاثر، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں برباد، متاثرہ کسان حسرت و یاس کی تصویر بن گئے، حکومت سے مالی امداد کی اپیل۔ السلام علیکم، خبر کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آمنہ کھٹانہ اور میں ہوں مریم ذیشان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات اس بریک کے بعد۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے اثرات خطرناک ہونے لگے، ایک دن میں مزید 88 افراد کو مہلک وبا نے نگل لیا، اموات کی تعداد 1483 ہو گئی، مزید 3039 افراد وائرس کا شکار ہوئے، جس کے بعد مریض 69,496 تک پہنچ گئے ہیں۔ جی ہاں، تیزی سے حملہ آور ہے کورونا وائرس اس وقت پاکستان میں۔ ہم نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے اثرات بھی خطرناک سامنے آ رہے ہیں، ایک ہی دن میں مزید 88 افراد زندگی ہار گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی اب کل تعداد 1483 ہو گئی ہے۔ تو 8 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے 18 دنوں میں شرح اموات اور متاثرہ افراد کی شرح دگنی ہو گئی ہے اور تیزی سے حملہ آور ہو رہا ہے کورونا وائرس پاکستان میں۔ اب ہم نے دیکھا کہ کل تعداد جو متاثرہ افراد ہیں وہ ہے 69,496 تک پہنچ گئے ہیں، جبکہ کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 25,271 تک پہنچ گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گرمی کے نقصانات سامنے آنے لگے، اموات مزید بڑھ گئیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 88 افراد کورونا سے جاں بحق ہوئے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 1483 ہو گئی۔ کورونا کے آؤٹ آف کنٹرول ہونے سے ایک ہی دن میں 3039 کیسز سامنے آئے، جس سے مریض 69,496 تک پہنچ گئے۔ سندھ میں 27,360، پنجاب 25,056، خیبر پختونخوا 9,540، بلوچستان میں 4,193 مریض زیر علاج ہیں، گلگت بلتستان 678، اسلام آباد 2,418، آزاد کشمیر میں 251 کیسز ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں کورونا کو مزید 1,140 افراد نے شکست دی، جس کے بعد گھروں کو واپس لوٹنے والوں کی تعداد 25,271 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 14,972 افراد کے ٹیسٹ ہوئے، مجموعی طور پر ٹیسٹوں کی تعداد 5,47,030 ہو گئی ہے۔ ادھر کراچی کی سینٹرل جیل میں کورونا وائرس کے باعث قیدی انتقال کر گیا ہے، جاں بحق ہونے والے قیدی کی عمر 87 برس تھی۔ ذرائع کے مطابق سینٹرل جیل میں کورونا وائرس سے قیدی کی ہلاکت کا پہلا واقعہ ہے۔ 87 سالہ قیدی بہاول خان قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا تھا۔
कोरोना की तशखीस के बाद कैदी को पहले सिविल और फिर लियारी जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर न हो सका। जान बहक होने वाला कैदी बल्दिया टाउन का रिहायशी था। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। रोजाना 200 से 400 तक नए मरीज सामने आने लगे। मुतासरा अफराद की तादाद 9000 से बढ़ गई। ऐसे में सूबाई हुकूमत ने अवाम को तनबीह की है कि अगर एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज किया गया तो मजीद सख्ती की जा सकती है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं जाकिरुल्लाह। पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की शरह में मजीद तेजी से इजाफा होने लगा। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक सूबा भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 9000 से बढ़ गई। करंतना मराकज में मुश्तबा मरीजों की तादाद 4000 से जायद हो गई है। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 6000 के करीब कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस हैं। मर्दान डिवीजन में 500 से जायद, मलकन डिवीजन में 2000 से जायद, हजारा डिवीजन में 600 के करीब, कोहाट में 300 से जायद, बनू डिवीजन में 100 और डीआई खान में भी 100 से जायद मरीज सामने आ चुके हैं। एहतियात नहीं कर रहे हैं और मेल जोल भी उसी तरह कर रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं। ईद पे भी यही काम हुआ है, तो इस वजह से बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। दिल से दुआ करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, इस्तग़फ़ार करे, एक दूसरे से न मिले, ये बीमारी है। पेशावर डिवीजन में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा 4000 के करीब पहुंच चुकी है। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर का कहना है, अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो मजीद सख्ती की जा सकती है। जो SOPs है उस पर अमल न किया तो उसकी वजह से खुदा न ख्वास्ता इस सूबे में कोरोना वबा के तादाद बढ़ जाएगी और ये आपके सामने, और उस पर फिर हमें सख्ती करनी पड़ेगी और हम मुख्तलिफ ऑप्शनों पे हमें सोचना पड़ेगा। सूबा भर में कोरोना वायरस से 450 से जायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि अब तक 3000 के करीब मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमती SOPs पर अमल दरामद को नजरअंदाज करने से केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसके लिए ठोस इक़दाम उठाने की अशद ज़रूरत है। कैमरामैन नईम बाबर के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। लॉकडाउन में नरमी के बाद मखसूस ट्रेन्स को ऑपरेशनल कर दिया गया, लेकिन कार्गो सर्विस की इजाजत नहीं दी गई। कार्गो सर्विस ऑपरेशनल न होने से जहां शहरियों को सामान की तरसील में मुश्किलात दरपेश हैं, वहीं रेलवे को भी नुकसान हो रहा है। मज़ीद तफसीलात मियां अंजुम की रिपोर्ट में देखिए। लॉकडाउन में नरमी के बाद महदूद ट्रेनों के साथ बहाल किए गए ट्रेन ऑपरेशन में फैसलाबाद से 4 अप और 4 ही डाउन ट्रेनों का स्टॉप रखा गया, लेकिन कार्गो सर्विस खोलने के हवाले से कोई हदायत जारी नहीं की गई। मुल्क भर में चलने वाली 30 ट्रेनों में कार्गो की बोगियां ट्रेनों के साथ खाली दौड़ती हैं। कार्गो अमला भी स्टेशन पर हमा वक्त मौजूद होता है। ऐसे में कार्गो और पार्सल सर्विस बहाल न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। भैया जाम हो गया कार्गो का और कोई मुसाफिर परेशान होते हैं, सामान लेकर आते हैं वापस चले जाते हैं, इसलिए कार्गो वालों को परेशानी होती है, पार्सल वालों की होती है। पाकिस्तान रेलवे के साथ जो गाड़ियाँ कार्गो की चल रही है, ब्रेक वान, लगेज वान चल रही हैं, तो मैं अपील करता हूं कि इनमें सामान की बुकिंग की इजाज़त दी जाए। 20 मई से ऑपरेशनल होने वाली ट्रेनों में कार्गो न होने से फैसलाबाद स्टेशन से ही रेलवे को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मामले पर असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान खालिद का कहना है, महकमा रेलवे के अफसरान को कार्गो सर्विस खोलने के हवाले से दरखास्त कर चुके हैं। जल्द ऑपरेशनल ट्रेनों में कार्गो सर्विस बहाल हो जाएगी। हम अपने पार्सल्स को भी ऑपरेशनल करें, यहाँ पे हम SOP को फॉलो करना ज़रूर इंश्योर करेंगे और उसे फॉलो करते हुए गुड शर्ट को खोलना मजाके की बात नहीं है। जैसे फैसलाबाद एक सनती शहर है, तो यहाँ से बहुत सारी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती है और लोग बहुत सारा सामान कराची भिजवाते हैं। कोरोना वायरस से हिफाजती तदाबीर के तहत बहाल की गई ट्रेनों में कार्गो और पार्सल सर्विस भी शुरू कर दी जाए तो शहरी अशिया की एक जगह से दूसरी जगह तरसील के मुतबादिल महंगे ज़राए से बच सकते हैं। ट्रेन के साथ कार्गो के खाली डब्बे भी दौड़ते हैं। अगर महकमा रेलवे कार्गो की इजाज़त दे दे तो मुनाफे समेत सामान की तरसील का निज़ाम भी बेहतर हो सकता है। कैमरामैन अहमद अली के साथ मियां अंजुम, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। जिक्र वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का, जिनका कहना है कि कोरोना से बचना है तो तर्ज जिंदगी को बदलना होगा।
उन्होंने कहा कि लोगों को घरों से बाहर निकलते हुए मुंह और नाक को ढांपना होगा। सेहतमंद जिंदगी के लिए एहतियात बहुत जरूरी है। कोरोना से बचाव के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कोरोना से बचने के लिए कुछ मशवरे दिए हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि लोगों को घरों से निकलते हुए मुंह और नाक को ढांपना होगा। सेहतमंद जिंदगी के लिए एहतियात बहुत जरूरी है। कोरोना से बचाव के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम कर रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोरोना से बचना है तो तर्ज जिंदगी को बदलना होगा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे आम शहरियों के लिए खुल गए हैं। एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज फजर अदा की गई। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम नमाजियों के लिए खोल दिया गया। नमाजियों के दरमियान मुनासिब फासला और मास्क लाजमी करार दिया गया है। एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज फजर की अदायगी की गई। कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नजर सऊदी हुकूमत ने मुल्क भर में लॉकडाउन करते हुए खाना काबा और मस्जिद नबवी समेत तमाम मसाजिद में बाजमात नमाजों की अदायगी और नमाजियों के दाखिले पर पाबंदी आयद की थी।